Okay, so today we will take some example related to the based on this color coding method. So today we trying to finish with first two methods of color coding, that is 4-band color mode coding method and 5-band color coding method. Okay, so yesterday I think I gave some introduction about the 4-band color coding method. In 4-band color coding method, how many bands are available on the body of the color carbon composition register? Four color bands are available. Always the first and second band color band indicates or used to calculate the first and second digits of the resistance. Clear? And third color always for multiplier, and fourth color is indicates a tolerance. Okay, now so today we start with the first example. See here the first example. Okay, might be आपको आता भी होगा पर just एक बार concentrate करो, देखो, जिनको नहीं आता है वो concentration से देखो. Clear? Now see here in the first example, four bands are available. The first band is of about which color? It is of brown. Second black. Third is red, and last one is a gold. Okay, now it's look like a silver. Just assume karo, suppose this is an gold. Okay, now you know that first and second color is indicates or it indicates a first and second significant digits of the resistance value. Matlab these are two digits of the resistance value, first two digits. So first color is black and brown. So in color coding table we are going to check the digit value of first and second color. Which color? Brown and black. So brown and black digit color. So कलर कोडिंग में तो आई थिंक कलर कोडिंग चार्ट इज अलोंग विथ यू, जस्ट आई एम अज्यूम कर रहा हूँ. सो मैंने ऑलरेडी कल आपको इन्फॉर्म किया था. ओके, सो फर्स्ट कौन सा है? लेट्स सी. फर्स्ट इज ब्राउन एंड नेक्स्ट इज ब्लैक. सो व्हाट इज द डिजिट वैल्यू ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक? सो चेक इट इन कलर कोडिंग मेथड. ब्राउन इज 1 and black is 0. So I am checking the digit value. Why? Because brown and black, these are the first two colors bands which is available on that carbon composition register. So brown is 1 and black is 0. So here I am writing this here in a red color. So you can see, so first is 1 and second is 0. Why? Because brown ka digit value hai 1, so here 1. Black digit value is 0, that's why 0. Now the third color is always multiplier, so I put the value of sign of multiplication. So here multiply. Now red, the third color is what? Red. So I want to check the red multiplier value. So red multiplier value is 10 raised to 2. So that's why I put 10 raised to 2 over here. So 1 0 2 digits are there, which is of first and second color bands. Then multiplier 10 raised to 2. Red is the multiplier value of red is what? 10 raised to 2. Now then you have to write C. Always calculating, while calculating the resistance value of any register, keep this thing in your mind. Always calculating resistance of the any register at that time, after writing the multiplier value, you have to specify the basic SI unit of resistance, that is of ohm. Don't write ohm symbol or don't write the basic SI unit of resistance after mentioning the tolerance. It is before tolerance and after multiplier value. Keep these things always in your mind. Clear? So before tolerance value आपको क्या लिखना है? SI unit, that is basic unit. Okay, so 10 into 10 raised to 2. Okay, ohm is the basic unit. Now how much is the tolerance? The tolerance value कौन सा band show करता है? Last band, that is fourth band, and fourth band is color is what? Gold. Now you have to check the gold tolerance value. Gold tolerance value is plus minus 5%. So that's why I write it plus minus 5%. Now again you have to recalculate these things. क्लियर? नाउ अभी ये प्लीज नोट डाउन करो, जो भी अभी मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये नोट डाउन करना है, बिकॉज मुझे एग्जाम में इसी वे में सबके आंसर चाहिए, तभी मैं आंसर करेक्ट दूंगा. अगर आपने नॉर्मली ऐसे ड्रॉ लिख के रखा तो उसका मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, नाउ सी कि आगे कैलकुलेशंस क्या करने हैं. नाउ 1 0 ये तो समझ में आया, मल्टीप्लायर समझ में आया, साइन आपको यूनिट आपको लिखना है, देन उसके बाद टॉलरेंस वैल्यू. सो आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप you have to perform these steps. See, ये रेड कलर में अभी जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर जो स्टेप्स है वो आपको अभी परफॉर्म करने हैं. अभी इसके अंदर के स्टेप्स देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ सो आपको क्लियरली दिखेगा. नाउ सी, सो इसमें स्टेप्स क्या है देखो. सो एज इट इज आफ्टर दिस यू हैव टू राइट लाइक दिस 10 into 10 raised to 2. आगे यूनिट रहेगा, दैट इज ओहम प्लस माइनस 5%. क्लियर है? ना 10 into 10 raised to 2.
Okay, now no need to do these steps. Okay, now directly you have to do this 1 into 10 raised to 3. Now why I am doing 10 raised to 3? See, listen, we know that basic unit of the resistance is ohm, but derived units are 3. That you know that. Which are the 3 derived units? Kilo ohm. Okay, see, derived units already हमने derived units resistors के देखे हैं. ओके, रेजिस्टर्स पॉइंट्स में हमने डिराइव्ड यूनिट्स देखे. विच आर द 3 डिराइव्ड यूनिट्स? देखो, मिली ओहम, किलो ओहम एंड मेगा ओहम. मिली ओहम का मीनिंग होता है 10 रेज़ टू -3, किलो का मीनिंग है 10 रेज़ टू 3 एंड मेगा ओहम इज 10 रेज़ टू 6. सो मैक्सिमम यूनिट 10 रेज़ टू 6, दैट इज मेगा. सो आपको करना क्या है, लिसन, वो लिख के रखो, इन शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा. नाउ व्हाइल कैलकुलेटिंग एनी रेजिस्टेंस वैल्यू, ओके, जो भी मल्टीप्लायर आपका आएगा, वेदर इट इज 10 रेज़ टू 3, 10 रेज़ टू 1, 10 रेज़ टू 0, 10 रेज़ टू -1 या 10 रेज़ टू -2, ओके, जो भी मल्टीप्लायर वैल्यू आएगा. क्यों? बिकॉज मल्टीप्लायर वैल्यू इनमें से एक ही आएगा ना, जो कलर कोडिंग मेथड में दिया है. मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू 0 टू 10 रेज़ टू 9 या फिर 10 रेज़ टू -1 या -2. सो हमारे पास बेसिक डिराइव्ड यूनिट्स कौन से मिली, दैट इज 10 रेज़ टू -3. किलो का मीनिंग होता है 10 रेज़ टू +3 एंड मेगा का मीनिंग होता है 10 रेज़ टू +6. तो आपको हमेशा क्या करना है, जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं उनके नियर बाय आपको मल्टीप्लायर वैल्यू लेके जानी है, उनके नियर बाय. अभी देखो मेरे पास, देखो रेड का मल्टीप्लायर वैल्यू कितना है, 10 रेज़ टू 2. नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट इज माय मल्टीप्लायर वैल्यू? 10 रेज़ टू 2. ये मेरा मल्टीप्लायर वैल्यू है. क्लियर है? सो 10 रेज़ टू 2 is near by which derived units? It is whether it is near to the 10 raised to -3, 10 raised to +3 या 10 raised to +6. It is near to the 10 raised to 3. करेक्ट है ना? 10 raised to 2 is near to the 10 raised to 3. इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आपके डिराइव्ड यूनिट्स जो है रेजिस्टेंस के, इस वहां डिराइव्ड यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करना है जो भी आपका मल्टीप्लायर वैल्यू आया है. क्लियर? सो मेरा मल्टीप्लायर वैल्यू है 10 रेज़ टू 2. मुझे डिराइव्ड में कहां पे लेके जाना पड़ेगा? उसके नियर बाय डिराइव्ड कौन सा है? 10 रेज़ टू 3. तो मुझे क्या करना है, 10 रेज़ टू 2 को 10 रेज़ टू 3 अगर करना है तो मुझे कहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे? लिसन केयरफुली कि मुझे कहां पे चेंजेस करने हैं. नाउ सी, सो यहां पे अगर सपोज लिसन, यहां पे लिखा है 10 into 10 रेज़ टू 2. कैन आई राइट दिस same equation or can I write this in this term also? 10.00 into 10 raised to 2. 10.00 into 10 raised to 2. now पॉइंट के बाद जो 00 होते हैं वो कुछ कैरी करते हैं क्या? वैल्यूज नहीं होता. 10.00 is equals to 10. yes, is equals to 10. ओके, 10.00 इज इक्वल्स टू 10. यस, इज इक्वल्स टू 10. अभी मैं ये पॉइंट क्यों आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, लिसन केयरफुली. जिनको नहीं पता रूल्स, इनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ. जिनको रूल पता है वो उनको कुछ तकलीफ नहीं होगी वो समझने के लिए. सी, 10.00 अगर किसी में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, 10.00 इज इक्वल्स टू 10. यस, सपोज इफ आई रिप्रेजेंट 52.00 इज इक्वल्स टू व्हाट? 52. Now 5.2 is equals to 52. No. 5.2 is equals to 52. No. 52.00 is equals to 52. क्लियर? ये होता है. नाउ सो मैंने क्या किया, जस्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करके रखा. सो 10.00 into 10 रेज़ टू 2. सो पॉइंट के, देखो पॉइंट के राइट हैंड साइड जो भी जीरोज रहेंगे उनको कुछ वेटेज होता है क्या, उनको कुछ वैल्यू होती है क्या? नहीं होती. सो दे आर कंसिडर एज एन 00. सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो देखो अभी ये रूल याद रखो. नाउ 10 रेज़ टू 2 मल्टीप्लायर is given according to, it is written, it is according to the given color code. My color code, color band is what? Red. So red का multiplier value क्या है? 10 raised to 2. Now what is the derived unit which is near to the 10 raised to 2? It is 10 raised to 3. That means in this my example I want to convert 10 raised to 2 into 10 raised to 3. करेक्ट है? मुझे कन्वर्ट करना है 10 रेज़ टू 2 को 10 रेज़ टू 3 में कन्वर्ट करना है. दैट्स मीन्स मुझे पावर को क्या करना है? इंक्रीज करना है. नाउ लिसन केयरफुली. व्हेनेवर आई वांट टू इंक्रीज द पावर ऑफ 10, ओके, देखो whenever if I want to increase a power of 10, ओके, सो यहाँ पे 10 की पावर मुझे इंक्रीज करनी है. 2 से क्या करनी है? 10 रेज़ टू 3. इफ आई वांट टू इंक्रीज, जैसे 2 क्या दिख, 2 इज व्हाट? 2 इज द पावर. 10 रेज़ टू 2, 2 इज व्हाट? पावर. सो इफ आई वांट टू इंक्रीज द पावर ऑफ माय 10 by 1 or by any value,
ओके, सपोज बाय 1 या बाय 2 या बाय 3, सो जिस वैल्यू से आपको उसको इंक्रीज करना है, सपोज यहाँ पे किससे इंक्रीज करना है, बाय 1, एक से इंक्रीज करना है। सो अगर एक से इंक्रीज करना है तो जो डिजिट्स हमने लिखे हैं दैट इज 10, ये जो डिजिट्स लिखे हैं मल्टीप्लायर के पहले, उस डिजिट्स में जो डेसिमल पॉइंट है दैट डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 1। अगर पावर आपसे एक से इंक्रीज कर रहे हो तो वो जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 1 डिजिट। अगर सपोज मैंने मुझे पावर 2 से इंक्रीमेंट करनी है, इफ आई वांट टू इंक्रीमेंट पावर ऑफ 10 by 2, देन यू हैव टू शिफ्ट दैट डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 2 डिजिट्स। इफ आई वांट टू इंक्रीज द पावर बाय 3, तो आपको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 3 डिजिट। क्लियर? सो अभी क्या करना है, लिसन केयरफुली। अभी मुझे क्या करना है, 10⁻2 का क्या करना है, 10⁻3। सो डायरेक्टली राइट इट डाउन। देखो अभी नीचे स्टेप में मैंने क्या किया है, 10⁻3 पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करके रखी। कितने से इंक्रीमेंट करनी थी, 1 से, तो मैंने 1 से इंक्रीमेंट करके रखी, दैट इज 10⁻3। नाउ अभी डेसिमल पॉइंट मेरा कहाँ पे, 10 के बाद है, 10 के बाद है, 10 पॉइंट ऐसे होता है, करेक्ट है। सो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक से इंक्रीमेंट करनी थी पावर, तो इसके लिए की, तो मुझे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, टुवर्ड्स लेफ्ट। कितने डिजिट से शिफ्ट करना पड़ेगा, 1, मतलब मेरा डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1.000 ऐसे देखेगा, करेक्ट है। सो 1.00 into 10⁻3, दैट्स मींस 1.00 इज इक्वल टू व्हाट, 1। 1.00 मतलब पॉइंट के राइट हैंड साइड में अगर सब डिजिट 00 है तो उसकी वैल्यू कुछ मैटर करती है क्या, नहीं। सो 00 से, सो देखो 1.00, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 1 into 10⁻3, समझ में आ। सो 1 मैंने एज इट इज, अभी नीचे देखो 1 एज इट इज मैंने रखा। नाउ 10⁻3 का मीनिंग क्या है वो हमने वहां पे लिखा है। 10⁻3 का मीनिंग क्या होता है, किलो। मिली ओहम का मीनिंग क्या होता है, 10⁻3। किलो ओहम का मीनिंग क्या होता है, 10⁻3, एंड मेगा मतलब 10⁻6। तो 10⁻3 अभी हो गया। सो 1 वैल्यू एज इट इज रखे, 10⁻3 मतलब के, किलो, एंड दैट इज बेसिक यूनिट इज ओहम। ये आगे का एज इट इज, बेसिक यूनिट इज ओहम, उसके बाद ±5%। क्लियर? नाउ कन्वर्जन क्लियर है एवरीवन? आई वांट द आंसर फ्रॉम एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. It is clear. Yes, sir. Okay, only few students replied. What about remaining? It is clear everyone? Yes, sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, now sir. Yes, sir. ओके नाउ यहाँ पे वाई हैव राइट वर्ड ओहम, बिकॉज यहाँ पे मैं अभी टाइप करते वक्त फास्टली ओहम का सिंबल यहाँ पे ढूंढ नहीं सकता, ओके कीबोर्ड से। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे लिखे ना 1K, उसके बाद OHM मैंने लिखा है ओहम। ये ओहम आपको वर्ड में नहीं लिखना है, आपको ये जो सिंबल है ओहम का, दिस सिंबल, ओके, द सिंबल ऑफ ओहम यू हैव टू राइट किलो एंड देन सिंबल ऑफ ओहम ±5%, वो याद रखो। सो जस्ट मैं अभी स्पीडली नहीं वहाँ पे ओहम का सिंबल डाल सकता, इसके लिए मैंने वर्ड में लिखा है। क्लियर? नाउ अभी हम और एक एग्जांपल देखते हैं, ओके, उसी के रिलेटेड। ओके, सेकंड एग्जांपल से क्या है, सेम 4 बैंड्स आर अवेलेबल, फर्स्ट 2 बैंड्स फॉर फर्स्ट 2 डिजिट्स, थर्ड इज मल्टीप्लायर, फोर्थ इज ये tolerance. Now first two colors for first 2 digits, which these colors are yellow and violet. Now yellow and violet का check करो color coding में, what is the digit value, yellow is 4 and violet is 7, so 47. so हमें क्या लिखना पड़ेगा, 47. so यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 47. and third color is what, that is orange. now orange का क्या है, see orange का multiplier value, because it is third color, so it is multiplier value is 10⁻3. so यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, into 10⁻3, then basic unit ohm, then ±5%, then ±5%, ±5% कहाँ पे आया, गोल्ड का सॉरी स्टूडेंट्स, गोल्ड का टॉलरेंस वैल्यू। नाउ अभी कैलकुलेशन यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत है क्या, सेपरेट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, बिकॉज चेक द मल्टीप्लायर वैल्यू, इट इज 10⁻3। हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लायर वैल्यू जो भी आती है उसको आपको सब यूनिट्स जो है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, मिली, आइदर किलो या फिर आइदर मेगा। सो जो सब यूनिट्स की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे आई है मल्टीप्लायर वैल्यू,
करेक्ट है, 10⁻³ एंड 10⁻³ सब यूनिट्स में वैल्यू है, दैट इज किलो. सो यहाँ पे हमें कन्वर्जन करने की जरूरत है क्या? नो नीड टू डू द कन्वर्जन. अगर सपोज यहाँ पे 10⁻4 होता या फिर 10⁻5 होता, सो आपको कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है, आइदर 10⁻6 में लेके जाना पड़ता है या फिर 10⁻3 में. यहाँ पे डायरेक्टली 10⁻3 है, सो नो नीड टू डू द कन्वर्जन. सो व्हाट इज माय रिजल्ट? 47. 10⁻3 का मीनिंग होता है के, सो 47 किलो ओहम प्लस माइनस 5%. क्लियर है एवरीवन? इट इज क्लियर नाउ? Yes, sir. हाँ. Yes. Yes, Yes, sir. sir. नाउ Yes, sir. It is clear. ओके. नाउ आई एम गिविंग यू द सम एग्जांपल, कि आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ओके, वो आपको खुद कैलकुलेशन करना है. ओके, आपको खुद कैलकुलेशन करना है. ओके, सो वो खुद कैलकुलेशन करके मुझे आप रेजिस्टेंस वैल्यू बताओगे कि उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आएगी. क्लियर? सो टेक दिस फर्स्ट एग्जांपल एवरीवन, राइट इट डाउन. सो आई एम गिविंग द नेम्स ऑफ द कलर. ओके, कि फर्स्ट बैंड का कलर कौन सा है, सेकंड कलर कौन सा है, थर्ड कलर कौन सा है, फोर्थ कलर कौन सा है. सी, टेक दिस फर्स्ट वन, सॉल्व दिस फर्स्ट वन, दैट इज रेड, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज, गोल्ड. Red, red, green, gold. First color is the red, second is also red, third is green and fourth is gold. Now do the calculation. मैं यहाँ पे आपको ओपन करके रखता हूँ. ओके, एग्जाम्पल आपने लिखा है, मेंशन करके रखो कलर्स मैंने कौन से दिए, रेड, रेड, ग्रीन एंड गोल्ड. क्लियर? नाउ अभी कलर कोड चार्ट में ओपन करके रखता हूँ, आप उसके वैल्यू कैलकुलेशन करके मुझे बताओगे कि कितना किलो ओहम आता है, मेगा ओहम आता है या ओहम में आता है. इट इज डिपेंड्स ऑन. क्लियर? कि कितना आता है या आप मुझे बताओगे. ओके, नाउ रेड, रेड, ग्रीन एंड गोल्ड. सो दिस इज योर कलर कोड टेबल. नाउ डू द कैलकुलेशन एंड एवरीवन मेंशन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन चैट सेक्शन. चैट में बताओगे. सो अगर चैट में भी अगर किलो में वैल्यू ले तो के मेंशन करो. आगे अगर सपोज ओहम है, सो ओहम का सिंबल अगर आप में मोबाइल में नहीं मिल रहा है तो OHM लिखो, दैट्स इट. एंड प्लस माइनस जो भी टॉलरेंस वैल्यू है. डोंट कॉपी अदर्स, जस्ट डू योर ओन कैलकुलेशन. पे मैं किसी भी रोल नंबर का ऑन करके पूछूंगा कि मुझे जस्ट शो योर कैलकुलेशंस. I want answer from all 31 students.
Okay, now see, now see. Okay, first two colors are what? Red, red. Okay, first two colors, just I want to see again. First two color red, red, and then green, and last is gold. Okay, so two color red, red, and then green. Okay, now see what is the digit value of red, red. Red, red is 2 2. Then green, green क्या होता है? 10 raised to 5. करेक्ट है, 10 raised to 5. एंड गोल्ड का कितना है? प्लस माइनस 5%. ओके, नाउ सो जस्ट रिप्रेजेंट ओवर हियर. सी क्या है? रेड का वैल्यू कितना है? 2. लिसन, रेड कितना है? 2. उसके बाद अगेन रेड 2 इंटू 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 कितना आएगा? 10 रेस टू 10 रेस टू 5. 10 रेस टू 5 मल्टीप्लायर वैल्यू ग्रीन. ओके, बाकी गोल्ड का आपको पता है. सो आगे क्या आएगा? ओहम. करेक्ट है, ओहम बेसिक यूनिट. उसके बाद गोल्ड का कितना आता है? प्लस माइनस. ओके, प्लस माइनस 5%. ओके, सो यू नीड टू डू द कैलकुलेशन. ओके, जस्ट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक बार. अभी 10 रेस टू 5 है मल्टीप्लायर, उसको अभी चेंज करना है किसमें? नियर बाय डिराइव्ड यूनिट्स. सो नियर बाय डिराइव्ड यूनिट्स 10 रेस टू 5 के नियर बाय कौन सा है? 10 रेस टू 6. मतलब अगेन यहाँ पे हमें पावर को क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है. पावर को इंक्रीमेंट करना है तो डेसिमल पॉइंट मेरा कहाँ पे है? 22 के बाद. सो 22 पॉइंट ऐसे होता है. सो इसको टूवर्ड्स मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट. मतलब आगे क्या आएगा? 2.2 इंटू इंटू 10 रेस टू 6 हो जाएगा. ओके, आगे यूनिट क्या रहेगा? एज इट इज ओहम. ओके, बाकी प्लस माइनस 5% एज इट इज. नाउ अभी 2.2 ये एज इट इज आएगा. 2.2 10 रेस टू 6 का मीनिंग क्या होता है? मेगा. सो एम कैपिटल. ओके, एम एंड रेस्ट ओहम एंड देन प्लस माइनस 5%. ना ये जो वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट करके रखी है वो प्रॉपरली रखो, बिकॉज इसका आगे का भी हमें कैलकुलेशन करना है. वो क्या है? लेट्स सी. ओके, नाउ सी, जस्ट अज्यूम करो फॉर एग्जाम्पल जस्ट अज्यूम करो. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ दिस. ओके, सपोज ये मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ. ओके, इस वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ. मुझे क्या कैलकुलेशन दिखाना है? लिसन केयरफुली. ओके, ओके, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज हमने एक ही टाइप का कैलकुलेशंस अभी तक देखे हैं. कौन से कैलकुलेशन? एक टाइप के मैं आपको अभी बता देता हूँ. ओके, जस्ट सी. अभी ये यूनिट जो है वो निकाल देता हूँ. ओके, जस्ट साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है रो की. सो इसके लिए देखो, अभी सपोज ये 22 इंटू 10⁵ था. सो इट इज नियर बाय व्हाट? इट इज नियर बाय 6. तो इसके लिए पावर हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी. अभी हमें एक एग्जांपल ऐसे लेना पड़ेगा कि जहां पे हमें पावर को डिक्रीज करने की भी जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जांपल जस्ट अज्यूम करो कि रेड रेड ग्रीन की जगह पे ऐसा कलर होता है जिसका टॉलरेंस वैल्यू, सॉरी मल्टीप्लायर वैल्यू 10⁴. ओके, सो 10⁴ किसका है? मल्टीप्लायर वैल्यू 10⁴. 10⁴ किसका? येलो. सो जस्ट अज्यूम करो रेड रेड ग्रीन की जगह पे है येलो. ओके, रेड रेड ग्रीन की जगह है येलो. तो वैल्यू क्या आएगी? 22 इंटू 10⁴ हो जाएगा. सो अभी 10⁴ जो पावर है इट इज नियर बाय व्हाट? इट इज नियर टू द 3. मतलब यहाँ पे इट इज नियर टू द 6 नहीं है. करेक्ट है, नियर टू 6 नहीं है. नियर टू 6 मतलब मेगा के नियर बाय नहीं, इट इज नियर टू द किलो है. सो नियर टू द किलो है. सो लिसन केयरफुली. अभी यहाँ पे हमें पावर को डिक्रीज करना पड़ेगा. मतलब मुझे नीचे पावर कितनी लेके आने पड़ेगी? 10⁻3. 10⁻3. अभी इंक्रीज नहीं करनी है. अभी जितने भी एग्जांपल हमने 3 सॉल्व किए इसमें ऑलवेज पावर गेट इंक्रीज, मल्टीप्लायर पावर गेट इंक्रीज बाय 1 और बाय 2. यहाँ पे हमें क्या करना है? हियर इन दिस एग्जांपल वी नीड टू डिक्रीज द पावर. सो अभी पावर को अगर डिक्रीज करना है तो उसी डेसिमल पॉइंट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ लेफ्ट टुवर्ड्स राइट. ओके, जैसे यहाँ पे 22.00 होता है ना. सो आप अगर यहाँ पे 5 होता, मतलब ये जैसे होता है 10 ये, तो यहाँ पे भी क्या होता है? 22.00. करेक्ट है. सो यहाँ पे आप क्या करते हो? 10⁵ मतलब पावर गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1. तो आप क्या करते हो? ये डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो आपकी वैल्यू आती है 2.2. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पावर जब आपको, सो ये स्टेटमेंट लिख के रखो किधर तो पॉइंट. व्हेनेवर इफ यू वांट टू डिक्रीज द पावर ऑफ 10 you need to shift decimal points towards right. So towards, यहाँ पे towards left की जगह पे अभी क्या करना है? जहाँ पे पावर डिक्रीज करनी पड़ती है वहां पे आपको डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करना है. सो जितनी वैल्यू डिक्रीज करनी उतने डिजिट्स आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे टुवर्ड्स राइट. क्लियर? सो नाउ शिफ्ट इट. देखो अभी 10⁻4 है, उसकी पावर मुझे डिक्रीज करनी है बाय 1. सो मुझे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा
कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, टूवर्ड्स राइट। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 220 इनटू एज इट इज 10⁻², फिर क्या हो जाएगा 3। समझ में आया? सो मेरी वैल्यू क्या होगी अभी 220 किलो ओहम। क्लियर? समझ में आया? नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो अभी स्टेटमेंट मैंने बोला कि पावर डिक्रीज होती है तो हमें क्या करना है? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ, Yes, तो sir. ये दोनों मेंशन करके रखो। जहां पे पावर इंक्रीज करनी पड़ती है डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू लेफ्ट, पावर जहां पे डिक्रीज होती है डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू राइट। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस अभी हमें कैलकुलेशन, न्यू कैलकुलेशन क्या देखना है? न्यू कैलकुलेशन हमेशा क्या देखा है? सो आई थिंक ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ये डेफिनेटली आपको बताया नहीं होगा। सो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखो कि हमें क्या करना है। सो एग्जांपल कैसे आता है देखो। एग्जांपल आपको आता है लाइक दिस कि डिटरमाइन द नॉमिनल वैल्यू एंड टॉलरेंस फॉर द रेजिस्टेंस बिलो। एग्जांपल आपको एग्जाम में ऐसे आता है। क्लियर? क्या कि डिटरमाइन द नॉमिनल वैल्यू एंड टॉलरेंस फॉर द रजिस्टर बिलो। उसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है हमें कि आपकी नॉमिनल वैल्यू मतलब जो भी रेजिस्टेंस नॉमिनल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू उसकी कि क्या है। जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में सॉल्व किया था कि हमारी वैल्यू कितनी है 47 किलो ओहम। करेक्ट है, 47 किलो ओहम ये हमारी क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। ओके, ये हमारी नॉर्मल वैल्यू है, दैट इज 47 किलो ओहम, ये नॉर्मल वैल्यू। नाउ एंड क्या कैलकुलेट करें, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस भी हमने शो किया, दैट इज ±5%। नाउ अभी सेकंड क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर। ओके, कैन एक्चुअली हैव, मतलब हमें क्या करना है, मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू इस रजिस्टर का क्या रहेगा। उसके बाद सी भी क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर कैन एक्चुअली हैव। ओके, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये दो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, सी हियर। अभी इस दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। नाउ लेट्स अज्यूम इन दिस टेबल, सपोज मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, सपोज मेरा रजिस्टर 10 ओहम का है। ओके, रजिस्टर वैल्यू इज ऑफ 10 ओहम एंड इसका सपोज टॉलरेंस जो वैल्यू है सपोज ±10% है। सो 10 ओहम का ±10% मतलब कितना, ये आप निकाल सकते हो। यस, कितना होता है 10 ओहम का ±10% मतलब कितना हो जाएगा 1 ओहम। इसका मतलब उसका मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू क्या रहेगा 10 - 1 दैट इज 9। इट इज अ मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू, उस एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू का मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू। एंड जो नॉमिनल वैल्यू जो आई है 10 ओहम, उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू क्या रहेगा 9 × 10 + 1 मतलब कितना आ जाएगा 11 ओहम। क्लियर? मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू इज 9 एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आएगा 11। अभी ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस। सो 10 ओहम जो नॉमिनल वैल्यू निकली उसका टॉलरेंस कितना था 10% था, 10% ±10%। सो ±10% कितना होता है नॉमिनल वैल्यू का, वो पहले मैंने कैलकुलेट किया, वो कितना निकला 1%। मतलब जितना रेजिस्टेंस आपको नॉमिनल मिलता है उसका टॉलरेंस वैल्यू कितना होता है वो पहले निकालो। मतलब 10 जितना भी टॉलरेंस दिया है, सो 10% दिया है तो 10% उस वैल्यू का कितना होता है वो मैंने कैलकुलेट किया, वो मिला मुझे 1 ओहम। सो मिनिमम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया, जो नॉर्मल वैल्यू है माइनस जो टॉलरेंस परसेंट जो निकला है वो। ओके, एंड मैक्सिमम कैसे प्लस किया, दैट्स इट। ओके, सो अभी ये एग्जैक्टली करेंगे कैसे, सी तो उसके कुछ फॉर्मूलेज है। ओके, सो वो फॉर्मूला अभी आप लिख के रखोगे एंड उसके रिलेटेड हम एक कैलकुलेशन एटलीस्ट ट्राई करेंगे, फिनिश होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? सो वो नॉमिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, सी हियर। ओके, नाउ सी नॉमिनल वैल्यूज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके, सी अभी ये कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी पता है, ये हमने किया। येलो वॉलेट, येलो का 4 है, 7 का वॉलेट का 7 डिजिट है तो 47। ऑरेंज का मल्टीप्लाई वैल्यू 10⁻3। गोल्ड कितना है +/5%। सो हमारी वैल्यू कितनी हो गई 47 × 10⁻3 ओहम। नाउ 10⁻3 पावर ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली आया है जो सब यूनिट है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी हो गई 47 किलो ओहम ±5%। अभी हमें क्या करना है कि मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी दिमाग के हिसाब से, मतलब जो थ्योरी अभी मैंने बोला इसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 5% जो टॉलरेंस है वो 5% ऑफ 47 कितना होता है ये हमें निकालना पड़ेगा। मतलब 47 किलो ओहम का 5% वैल्यू क्या है ये हमें पहले निकालनी पड़ेगी। एंड वो जो 5% वैल्यू आएगी 47 के की, सो वो हमें सब्सट्रैक्ट करने की पड़ेगी 47 में से
तो हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा एंड वही 5% वैल्यू ऑफ 47 के ऐड करनी पड़ेगी 47 के साथ, तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगी। क्लियर? सो ये अभी हम बोल रहे हैं, तो एग्जैक्टली कैसे करेंगे, सी हियर। ओके, सी हियर नाउ, ये जो रेड से ऊपर लिखा है, जो रेड से लिखा है वो फॉर्मूला पहले ही आप लिख के रखो। क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट मेंशन आउट एवरीवन, सभी मेंशन करके रखो, बिकॉज ये आपको करना है, बिकॉज ये मैं स्लाइड बार बार नहीं दिखाने वाला। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर मीन, MIN मतलब मिनिमम, RES मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू। First formula is for what? To calculate minimum resistance value. So minimum resistance is equals to nominal minus nominal into tolerance divided by 100 into tolerance divided by 100। ये हो गया मीन रेजिस्टेंस के लिए, मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। नाउ मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू नॉमिनल, सेम एज इट इज रखा, दोनों इक्वेशन में देखो सेम है, जस्ट माइनस का हमें क्या करना है, प्लस नॉमिनल इनटू टॉलरेंस डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? टॉलरेंस डिवाइडेड बाय 100। Clear? Now let us see, let's see the first example. Now अभी हमें मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है। अभी हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? ये ऊपर जो एग्जांपल है 47K का 47 किलो ओहम प्लस माइनस टॉलरेंस कितना निकला है, प्लस माइनस इज व्हाट, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5% जो टाइम निकला है टॉलरेंस है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। सो अभी लेट्स कैलकुलेट ना मिनिमम रेजिस्टेंस, सी हियर। ओके, अभी ये कॉन्सेंट्रेट करो जो एरो से मैं शो कर रहा हूँ ना, मिनिमम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू कितनी निकली हमारी, नॉर्मल वैल्यू 47K, सो मैंने आई पुट 47K माइनस अगेन नॉमिनल, यस, तो 47K इनटू क्या लिखना है, टॉलरेंस डिवाइडेड बाय 100। तो मेरा टॉलरेंस कितना है मेरे एग्जांपल में, टॉलरेंस मेरा कितना है 5%। सो मैंने क्या किया, 5 डिवाइडेड बाय 100, आप सेपरेटली करके ले लो, ये 5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, इतना तो मैथ्स आना चाहिए। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 अगर आप करोगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0.05 ये वैल्यू मिलती है। if we did what, if we did 5 divided by 100, so 0.05 is what value, it is a tolerance 5 divided by 100 value, so 0.05 ये यहाँ पे आया। now let's do the calculation। now अभी इक्वेशन में क्या है, 47K माइनस 47K इंटू 0.05, तो हमें पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, 47K इंटू 0.05, ये पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? ये पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आपको सेपरेटली सॉल्व करना है, ये मैं सॉल्व करके यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। तो 47 को मल्टीप्लाई करो 47, k यूज मत करो, k इज अ कॉमन टर्म, तो कॉमन आपको रखो k को। सो 47 इंटू 0.05 आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा एंड उसका रिजल्ट आपको मिलेगा 2.35 k। क्लियर? सो वो आपको 47K में से माइनस करना है। सो माइनस करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 44.65 किलो, मतलब आपका एग्जैक्टली नॉमिनल वैल्यू कितना मिला, 47K, बट जब 5% टॉलरेंस उसको दिया है तो उसका मिनिमम वैल्यू इतना भी जनरेट हो सकता है, कितना, 44.65 किलो ओहम। ओके, एंड अबाउ मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, जस्ट माइनस की जगह पे प्लस, बाकी के सेम कैलकुलेशन। तो 47 इंटू 0.05 2.35 आता है, सो वो आपको जस्ट प्लस करना पड़ेगा, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 49.35 किलो ओहम। जस्ट आपको एक्स्ट्रा वर्क क्या करना पड़ता है, सेपरेटली वर्क क्या करना पड़ता है, ओके, लिसन केयरफुली, जो भी टॉलरेंस दिया है उसको डिवाइडेड बाय 100 करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जैसे 5 टॉलरेंस वैल्यू थी, 5 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.05, वो प्लस एक्स्ट्रा सेपरेट कैलकुलेशन आपको क्या करना है, दैट वैल्यू मतलब ये जो 0.05 जो आया है वो इनटू 47, ये आपको सेपरेट मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। क्लियर? सो ये थोड़ा सा दिमाग में रखो। नाउ ये थोड़ा सा कैलकुलेशन क्लियर है एवरीवन? Yes, तो sir. आगे Yes, हम sir. Yes, ओके, सो कल के sir. लेक्चर में मतलब Yes. वर्किंग डेज में जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो उस टाइम हम एक एग्जांपल लेंगे और उसका हम नॉर्मली यहाँ पे कैलकुलेशन करके चेक करेंगे कि कैसे आता है। Sir, हाँ बोलो बोलो बेटा। so for